الحمد لله كفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ صراط مستقیم کورس چل رہا ہے، اس میں 40 اسباق ہے اور آج کا ہمارا 34واں سبق ہے۔ اس کورس کو شیخ طریقت پیر و مرشد استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس محمد حافظہ اللہ صاحب نے مرتب فرمایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس میں 5 اجزاء پر بات ہوتی ہے۔ نمبر 1 قرآن مجید کی آیت، نمبر 2 حدیث مبارکہ، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ اور نمبر 5 مسنون دعا۔ آج کی پہلی چیز قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 97 اس میں اللہ رب العزت حج کی فرضیت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ تعالیٰ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ دیکھیں حج یہ جو ہے دین اسلام میں 5واں رکن ہے۔ اس طریقے سے ہم کہتے ہیں بنی الاسلام علی 5، تو 5ویں چیز حج آتی ہے، جیسے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، پھر حج۔ تو حج یہ 5ویں چیز ہے۔ اب یہ حج کرنا فرض ہے کس پر؟ جو اتنی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ فرما رہے من استطاع الیہ سبیلا، کہ وہ بیت اللہ تک پہنچنے کا اس کے پاس سارو سامان ہے، جو پیسے پانی لگتے ہیں، جو ضرورت خرچے ہیں، وہ سارا ہے، اور اس کے پاس اچھی سواری ہے، تو اس شخص پر حج فرض ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حج نہ کرنے پر کیا وعیدیں ہیں۔ سنن ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288 پر یہ حدیث منقول ہے۔ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ملکا زادہ وراحلتن تبلغوہ الی بیت اللہ، کہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اتنا اس کے پاس سامان ہے، مال دولت ہے کہ وہ حج کا سفر کر سکتا ہے، اور اس کے پاس اچھی سواری ہے، اور راستے کے جو اخراجات ہوتے ہیں اس کے پاس موجود ہے، اور وہ شخص وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ، اور وہ شخص حج نہیں کرتا، یعنی جو اس کے پاس اتنی استطاعت ہے، پیسے ہے، سب کچھ ہے، اور وہ حج نہیں کرتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَلَا عَلَيْهِ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان یموت یہودین او نصرانین، کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے۔ جو شخص کے پاس سارو سامان ہے اور پیسے وغیرہ سارا کچھ ہے اور وہ حج نہیں کرتا، واللہ عالم وہ کس حال میں مرے گا، یہودی ہو کے مرتا ہے یا نصرانی ہو کر مرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ، اور اسی طریقے سے تو اللہ رب العزت اپنی کتاب میں فرما رہے ہیں، وہ جو آیت ابھی میں نے اوپر پڑھا ہوں، وہ یہ آیت حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ اس کی تلاوت کر کے بتایا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے لیے فرض ہے، اللہ کے لیے وہ حج کرے، ہے نا، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے حج بھی کرے۔ حج کرنا زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو شخص اتنی طاقت رکھتا ہے کہ میں حج پہ جا سکتا ہوں، پہلے سواریاں ہوتی تھی، لوگ گھوڑوں پر اونٹوں پر سوار ہو کے جاتے تھے، تو اسی لیے سواری کا ذکر ہے۔ آج کی تاریخ میں تو لوگ کوئی بھی اونٹ گھوڑے پہ نہیں جاتے ہیں،
اور اس کے بعد آیا تھا کہ جو بڑے بڑے جہازوں میں، پانی کے سمندری بحری جہازوں میں جا کے سفر کر کے حج کرتے تھے، تو آج بھی نہیں، آج ہوائی جہاز میں جا رہے، تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے ٹکٹ لینے کے لیے. تو اتنا پیسہ ہے بندے کے پاس کہ وہ ٹکٹ لے گئے، وہاں کا ویزا لگا لے، اور وہاں کا رہنا کھانا پینا اتنا سارا انتظام ہو جاتا ہے، تو اس شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز دیکھیں عقیدہ کے بارے میں. یہ کہ عقیدہ خروج دخان یعنی دھوئیں کا ظاہر ہونا. دخان، سورہ دخان بھی ہے قرآن مجید میں، اللہ رب العزت وہاں پر اس کی تفصیل سے وضاحت کی ہے. تو دیکھیں میں نے بتایا تھا علامت کبریٰ جو قیامت کی علامتیں ہیں. پہلی علامت کیا تھی؟ کہ حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر ہو گئے. اس کے بعد دوسری علامت تھی کہ دجال کا خروج ہوگا، وہ باہر نکلے گا. تیسری علامت تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، وہ آسمان سے نیچے اتریں گے. چوتھی علامت تھی یاجوج و ماجوج، جس کا سورہ کہف میں تذکرہ آتا ہے. پانچویں علامت ہے دخان. دخان یعنی دھواں، دھواں کا ظاہر ہونا، دھواں دکھے گا لوگوں کو. اس کے بارے میں دیکھیں کیا فرما رہے استاد محترم کہ جہجہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ ہو گئے ہے نا. عیسیٰ جب مہدی علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا تو سارا نظام عیسیٰ علیہ السلام سنبھالیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا جب انتقال ہونے آئے گا تو اپنے انتقال سے پہلے وہ ایک شخص کو خلیفہ بنائیں گے جس کا نام ہوگا جہجہ. تو وہ شخص اسلامی جو تعلیمات اور جو انہوں نے سیکھا ہے اس حساب سے انصاف کریں گے، عدل کریں گے ہے نا. اس کے بعد چند بادشاہ آئیں گے، ان کا بھی انتقال کا وقت آئے گا، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت ہے، تو ان کا بھی انتقال کا وقت آئے گا. وہ بھی انتقال فرما جائیں گے. ان کے انتقال کے بعد چند بادشاہ آئیں گے، کچھ بادشاہ اور آئیں گے، وہ بھی حکومت کریں گے. اب ان کے حکومت کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں کہ کفر و الحاد اور شرک و فساد بڑھ جائے گا. اب انہی کی سلطنت میں، جہجہ کی ہی سلطنت میں یہ ساری چیزوں کی شروعات ہو جائیں گی. جب تک عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے تو صرف اسلام ہوگا، لیکن جہجہ آئیں گے تو ان کے بعد دھیرے دھیرے اسلامی انصاف، عدل و انصاف بھی ہوگا، لیکن یہاں دھیرے دھیرے فساد شروع ہو جائے گا، شرک شروع ہو جائے گا. ان کے بعد انتقال کے چند بادشاہ اور حکومت کریں گے. ان کے دور میں یہ بڑھ جائے گا. کیا بڑھ جائے گا؟ کفر بڑھ جائے گا، شرک بڑھ جائے گا، الحاد ہو جائے گا، فساد مچ جائے گا روئے زمین پر ہے نا. تو اس کے یہ یہاں تک کہ ایک مکان مغرب کی جانب ہوگا اور ایک مکان مشرق کی جانب ہوگا. اور ان مکانوں میں کیا کرے جائے گا پتہ ہے؟ یہ مشرک لوگ اپنی تقریر کریں گے، شرک کی باتیں کریں گے، وہاں لوگوں کو بھڑکانا شروع کریں گے، دین اسلام کے خلاف باتیں کریں گے. تو ایسے میں اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ ان مکانوں کو دھسا دیں گے اندر زمین کے اندر، اور پھر آسمان سے ایک دھواں ظاہر ہوگا. وہ دھواں اس طریقے سے ظاہر ہوگا کہ وہ پورے لوگوں کے اوپر چھا جائے گا. جس طریقے سے رات دیکھے کالی ہوتی ہے اور پوری دنیا پر چھا جاتی ہے، سب جگہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، اس طریقے سے دھواں نکلے گا. دھواں نکلے گا تو سارے لوگوں کو ڈھانپ دیں گا، اور یہ دھواں تقریباً 40 دن رہے گا دنیا میں، تقریباً 40 دن رہے گا. اور تو اور یہ دھوئیں سے مسلمان جو ہوں گے انہیں ایسا لگے گا جیسے سردی کھانسی بخار وغیرہ ہوتے نارمل بیماری، تو اس طریقے سے انہیں تکلیف ہوگی. جس طریقے سے سردی کی زکام کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو تھوڑی تکلیف، لیکن یہ کافروں کے لیے بڑا عذاب بن جائیں گا. ان کی سانسیں گھٹنے لگیں گی اس میں، اور اس سے کیا ہوگا؟ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. بے ہوش ہونے کے بعد 2-3 دن بعد ان کو ہوش آ جائیں گا. اب یہ ہوش آ جائے گا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسی کا تذکرہ فرمایا ہے سورہ دخان آیت نمبر 10 اور 11 میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم. بس اس روز کا انتظار کیجئے کہ جس دن آسمان واضح دھواں لائے گا. واضح یعنی ایک دم کھلا کھلا، یعنی آنکھوں سے نظر آنے والا دھواں ہوگا وہ. تو وہ دھواں جب آسمان سے آئے گا تو آنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ لوگوں پر چھا جائے گا. جب لوگوں پہ چھا جائے گا تو یہ دردناک عذاب بن جائے گا ان کے لیے. آگے دیکھیں حج، چوتھی چیز ہے حج کے مسائل اور اس کے کیا احکام ہیں. فقہی مسئلہ ہے.
जिस तरीके से हमने नमाज, कुरान, रोज़े के मसले पढ़े, अब हज का मसला है। हज का मसला भी बगौर समझ फरमाए। देखिए, इस्लाम का 5वां रुकन हज है। जिस तरह मैंने बताया बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम इंग्लिश में कहेंगे तो उसमें 5वीं चीज़ हज जाती है, और ये बुनियल इस्लाम अरबी में कहेंगे तो वो भी उसकी बुनियादी चीज़ें इस्लाम की क्या है, तो नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज है। तो ये हज 5वीं चीज़ है, 5वां सुतून है इस्लाम का। हज जो है हर ऐसे मुसलमान आकिल बालिग पर फर्ज है जो इस्तिताअत रखता है, जो इतनी ताकत रखता है कि वो बैतुल्लाह का सफ़र कर सके। अब कितनी बार हज फर्ज है, तो जिंदगी में कम से कम 1 मरतबा हज करना फर्ज है। अब उसके पास इतनी मालो दौलत आ गई, जिसे ज़कात निकालने के लिए साहिब निसाब होना पड़ता है ना। साहिब निसाब है तो ज़कात उसको निकालनी है, हर साल निकालनी है। लेकिन हज क्या है, अगर मालो दौलत आ गई है तो कम से कम जिंदगी में 1 मरतबा हज करना फर्ज है। ठीक है। अच्छा, अब इतनी माल दौलत है, अब इसके बाद क्या होना चाहिए, देखना चाहिए। देखिए कि कुछ बंदे कुछ दिन के लिए जाते हैं, कुछ लोग ज्यादा अरसे के लिए जाते हैं। अब पहले तो सफर बहुत लंबा होता था, 2-2 महीने, 3-3 महीने लग जाते, क्योंकि ऊंट पर सवारी, घोड़ों पर ऐसा सफर करते थे। लेकिन आज तो बड़ा आसान हो गया है, फ्लाइट के जरिए जाना है, फ्लाइट के जरिए आना है, तो बड़े कम वक्त में 1 हफ्ते के अंदर आप जाके हज करके वापस आ सकते हैं। अब इसमें एक शर्त ये भी पाई जाती है कि देखिए, जब आप ये सारों हज का जो सारा साजो सामान आपके पास जमा हो गया है, रहना, खाना, पीना, वहाँ पर होटल मैनेजमेंट सारा, और वीज़ा और टिकट सारा हो गया, आने जाने का सारा, पीछे हमारे अहल जो है, हमारी बीवी, बच्चे, वालिदैन, जो फैमिली है, हमारी अहल है, उनका खर्चा भी छोड़कर जाना है। ये नहीं कि आप चले गए, जिंदगी भर जितना कमाया जमाया था और वो सारा लेके चले गए, पीछे ये भूखे मर रहे, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको चाहिए कि इतना उनके लिए भी खर्चा छोड़े, ताकि वो भी अपना गुजर बसर कर सके। ठीक है, कुछ मसाइल देख लीजिए यहाँ पे, मैं इसमें बताऊं कि क्या क्या अहम बातें हैं। अगर किसी के पास सफर इतना जब सफर करता है तो इतना खर्च है कि मक्का मुकर्रमा जा सकता है, ठीक है ना। अब हज कहाँ करते हैं, मक्का में ही करते हैं, ठीक है ना, वहाँ मक्का में करते हैं। फिर उसकी क्या क्या चीजें वो भी मैं आगे बताऊंगा, हज में क्या करना है, कुछ चीजें मुख्तसर तौर पर बताऊंगा। तो देखिए, वो अगर उसके पास इतना पैसा है वो मक्का ही जा सकता है। अब मक्का से मदीना नहीं जा सकता है, इतना पैसा नहीं है उसके पास, तो भी उस शख्स पर हज फर्ज है। अब ये नहीं वो बोल सकता है कि भाई मैं मक्का गया, मदीना नहीं जा सकता, इतना पैसा नहीं है तो मैं हज नहीं कर सकता, नहीं, उसे चाहिए कि वो हज करे। नंबर 2 है कि हज उम्र भर में बस 1 मरतबा फर्ज है। अगर कई हज कर दिए हैं, अब बाज लोग होते हैं कि 40-40 हज करते हैं अपनी जिंदगी में, हर साल हज करते हैं, तो सारे हज क्या हो जाते हैं, नफली सवाब होता है उनका, नफली हज हो जाते हैं, ठीक है ना। एक है जो जिंदगी भर में सबके लिए फर्ज है, और बाकी अगर करते हैं तो वो नफिल हो जाते हैं, और नफिल हज करने का भी सवाब मिलता है। तीसरी चीज है, लड़कपन में यानी अपने बचपन में अगर अपने वालिदैन के साथ हज पे गए हैं, हज किए हैं, तो ये हज क्या है, उस बच्चे का, माँ बाप का हज हो गया, फर्ज अदा हो गया, लेकिन बच्चे का नफिल हज हो गया, ठीक है। अब वो बच्चा जब जवान होता है, जवान होने के बाद उसके पास अगर इतनी ताकत है, पैसे है कि वो जाकर हज कर सकता है, तो उसे हज अदा करना है, उसका फर्ज फिर अदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। बचपन में किया हुआ हज का फर्ज अदा नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो नाबालिग था इसलिए। नंबर 4 देखिए, अगर किसी ऐसे शख्स ने कर्ज लेकर या मांग तांग करके हज कर लिया, जो साहिब इस्तिताअत नहीं था, है ना, पैसा पानी नहीं था, इधर से चंदा वगैरह किया किसी को बोल के और हज पे गया, ठीक है ना, तो अब वो क्या है, उसका हज अदा हो गया, ठीक है ना। अब अगर वो माल दौलत वाला बन गया, फिर अल्लाह ने उसको गनी कर दिए, पैसे पानी आ गए, तो अब वो उसको हज करना फर्ज नहीं रहा। हाँ, वो चाहे तो हज कर सकता है, वो नफली सवाब मिलेगा उसको, ठीक है। नंबर 5 है, औरत पर हज फर्ज होने के लिए अपना और महरम का खर्च जरूरी है, अपना और महरम का खर्च जरूरी है। कोई औरत है, उसके पास इतना पैसा आ गया है, ठीक है ना, कि वो बिजनेसमैन जो भी कुछ है वो करती है, तो उसके पास इतना पैसा आ गया, अब उस पर हज फर्ज हो गया। अब क्या करेंगी वो, अब वो अकेली नहीं जा सकती, इसलिए उसको चाहिए कि उसका खर्चा और उसके साथ कोई महरम आदमी होना चाहिए। महरम कौन कौन है मैं आगे बताऊंगा इंशाल्लाह।
تو اتنا दोनों का खर्चा वो उठाएंगी, खुद का भी और महरम का भी, और इतना पैसा है और पीछे जो कुछ छोड़ के जाना है जरूरियत के लिए तो ठीक है, तो फिर वो हज पे जा सकती है। छठी चीज आती है औरत के लिए महरम या शौहर के बगैर, औरत का महरम या शौहर के बगैर 48 मील यानी इंग्लिश में बोलूं तो 77 किलोमीटर अकेला सफर करना मना है। और अगर कोई औरत अगर ऐसा अकेला सफर करती है तो शरीयत के खिलाफ करती है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास किसी औरत को नहीं कहा कि जवान औरत या बूढ़ी औरत है, नहीं, सराहतन औरत का लफ्ज है कि औरत के लिए इतना सफर अकेले तय करना मना किया गया है इस्लाम में। अगर कोई सफर ऐसा करता है तो शरीयत के खिलाफ करती है, वो चाहे हज के लिए है, उम्रा के लिए है, तो वो ऐसा उसका हज उम्रा करना उसके लिए सवाब का बाइस नहीं बनेगा, बल्कि वो गुनाहगार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने हदीस की खिलाफ वर्जी की है। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं माना है। देखिए, चाहे वो सफर रेल का हो या हवाई जहाज का हो या गाड़ी मोटर का हो या समुंदर का हो, कोई भी सफर हो, औरत अगर सफर करती है तो उसकी मिकदार जो मैंने बताया 77 किलोमीटर है, तो उसको चाहिए कि महरम, और महरम नहीं है तो शौहर, ये सारा इससे के साथ में वो सफर कर सकती है, इसके अलावा नहीं कर सकती है। ठीक है ना। और आज का जो जमाना चल रहा है इसमें तो एहतियात की जरूरत है। औरत सब में पहली बात तो अगर वो सफर करने निकलती है तो 15-20 किलोमीटर का भी अगर उसका सफर है तो उसे चाहिए कि उसके साथ उसका शौहर हो या महरम हो। अगर औरत की शादी नहीं हुई है, शौहर नहीं है, तो महरम तो होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि फितने फसाद का जमाना है और उसकी इफ्फत, इज्जत, आबरू का सवाल होता है ना। तो हर ममालिक में अक्सर देखा जाता है कि औरत के साथ उसकी इज्जत लूटी जा रही है ना। तो बेहतर यही है कि एहतियात करनी चाहिए। फायदे के तौर पर एक बात समझ फरमाए कि देखिए, औरत का महरम वो शख्स होता है जिससे कभी भी निकाह दुरुस्त ना हो। अब मैं बता रहा था महरम के बारे में, तो सिंपल अल्फाज में, सीधे से अल्फाज में मैं बता दूं, जिस शख्स के साथ उसका निकाह दुरुस्त नहीं है, यानी वो निकाह कर ही नहीं सकती है। क्यों? कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिससे निकाह नहीं कर सकती, वो शख्स उसका महरम होता है। अब महरम कौन कौन है? पहले नंबर पे देखिए बाप से बेटी का निकाह नहीं हो सकता। दूसरा आता है बेटा अब माँ से निकाह नहीं कर सकता है। तीसरा आता है पोता, चौथा नवासा, पांचवा दामाद और छठा ससुर, और सातवां है हकीकी चाचा और आठवां है हकीकी मामू। तो इन लोगों के साथ औरत का निकाह दुरुस्त नहीं है, होता ही नहीं है। दीन इस्लाम में, शरीयत में होता ही नहीं है। एक लड़की अपने मामू से निकाह नहीं कर सकती, ना ही अपने चाचा से कर सकती है, ना ही अपने बाप से कर सकती है, ना ही अपने भाई से कर सकती है, ना ही औरत अपने बेटे से करेंगी, ना दामाद से करेंगी। ठीक है, ना बहू अपने ससुर से करेंगी। तो ये सारे क्या है? ये महरम शख्स है। तो ये महरम के साथ में जाकर हज उम्रा करे तो इसकी गुंजाइश है और ये जायज है। ठीक है ना। अब देखें कि खाला का बेटा, मामू का बेटा, चाचा का बेटा, फूफी का बेटा, है ना, ये सारे क्या है? ना महरम है। क्यों? क्योंकि खाला के बेटे से शादी हो सकती है, मामू के बेटे, चाचा के बेटे, फूफी के बेटे से शादी हो सकती है, तो ये सारे ना महरम कहलाएंगे। इसी तरीके से बहनों ही है, एक दो लड़कियां हैं, दो बहनें हैं, उसमें से एक बहन की शादी हो गई है, दूसरी की शादी नहीं हुई है। ठीक है ना। तो वो दूसरी बहन जो है उसके लिए वो शख्स, वो दामाद जो बहन का शौहर है, वो भी गैर महरम हो जाता है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब तक बहन निकाह में है तो वो इस्लाम उसको इजाजत नहीं देती है कि उसकी दूसरी बहन से शादी करे। हाँ, अगर बहन मर गई या उसको तलाक हो गई तो फिर वो उसकी ही बहन से शादी कर सकता है, तो वो शख्स भी गैर महरम होता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये समझे कि अगर देखें कोई ऐसा शख्स है, यानी दूध शरीक यानी जैसे एक औरत ने एक लड़की को दूध पिलाया बचपन में, वो उसकी माँ ने ही पिलाया है। ठीक है ना। और एक लड़के को भी पिलाया जो उनका रिश्तेदार भी नहीं था, कोई नहीं था, समझे पड़ोसी था, तो वो शख्स अब उसका दूध
माँ का दूध पीने की वजह से क्या हो गया, वो दूध शरीक भाई हो गया, दूध पीने की वजह से उसका भाई कहलाएगा, ठीक है ना। तो वो भाई होगा, तो भाई होने के साथ साथ वो क्या हो गया, वो उसका अभी महरम बन गया, ठीक है ना। अब उस वो औरत पर अगर हज जो है उम्रा करना चाहती है तो इस दूध शरीक भाई के साथ जाकर हज उम्रा कर सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, और इसमें इसके साथ सफर करना जायज हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ समझे कि देखिए महरम ऐसा हो जिससे बेइत्मीनानी ना हो। बेइत्मीनानी ना हो मतलब क्या है कि भाई कोई औरत है, अब उसके किसी के साथ जा रही है तो वो उसे दिल में कोई डर ही ना हो, हाँ ये मेरा सगा महरम है ना, जैसा कि वो मेरे साथ कोई बुरा काम नहीं करेगा, यानी कोई खौफ ना हो, उसे कोई शक भी ना हो। अगर कोई ऐसा 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 महरम होना चाहिए, और अगर कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसके बारे में कोई बुरी चीजें मालूम है और उसकी आदतें अच्छी नहीं है, भले से वो महरम हो और वो कितना भी करीबी हो, करीब का रिश्तेदार क्यों ना हो, महरम होने के नाते उसके साथ सफर करना जायज नहीं। जायज तो है लेकिन एहतियात के तौर पर ये सही नहीं है। महरम है लेकिन उसकी आदत अच्छी नहीं है तो अपनी हिफाजत, इज्जत की हिफाजत करने के हिसाब से उसके साथ सफर ना किया जाए, ये बेहतर है। अब देखिए हज में कितनी चीजें फर्ज है, तो हज में 3 चीजें फर्ज है। नंबर 1 क्या है, एहराम बांधना यानी नियत करना, और दूसरी चीज क्या है, तलबिया पढ़ना यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ये पढ़ना है। हाँ अगर इसके अलावा कोई दूसरी चीज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या है उसमें असल चीज मेन है कि उसमें अल्लाह की बड़ाई होना है, तो सुन्नत तो यही है लब्बैक पढ़ना, तो यही पढ़ा जाए बेहतर है, ठीक है। नंबर 2 है वुकूफ अरफा यानी 9 जिलहज्जा के रोज, 9 जिलहज्जा के रोज जवाल के बाद, जो जोहर से पहले का वक्त होता है सूरज ढलने का, जवाल के बाद से लेकर मगरिब से पहले तक के वकूफ अरफात के मैदान में थोड़ी देर के लिए ही हो रुकना, भले एक लम्हे के लिए रुकना हो, वहां पर रुकना है, इसे कहते हैं वकूफ अरफा। और वहां रुकेंगे तो ही हज पूरा होता है, क्योंकि इसकी एक फर्जियत है, ये हज का 3 फर्ज है, तो उसमें से दूसरे नंबर पे वकूफ अरफा फर्ज है। और तीसरी चीज क्या है, तवाफ जियारत। जब ये सारी चीज मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद एक मरतबा तवाफ करना होता है जाके फिर काबतुल्लाह का, तो उसे तवाफ जियारत कहते हैं, ठीक है ना। और आगे आता है वाजिबात हज। हज में कौन कौन सी चीजें वाजिब है, तो इसमें 6 चीजें वाजिब है। देखें वकूफ मुजदलफा यानी मुजदलफा जो जगह है वहां पर जाके थोड़ी देर के लिए रुकना। अब कब से रुकना है, सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब, इसके दरमियान में रुकना जरूरी है। इसीलिए रात लोग सफर करते हैं और रात भर जग के वो मुजदलफा पहुंचते हैं। मुजदलफा में सुबह सादिक से पहले पहुंच जाते हैं और तुलुए आफ्ताब तक उसके दरमियान में रुकना होता है। नंबर 2 है कि तीनों बुतों को तीनों दिन जो है शैतान को कंकरियां मारना है, रमी जमरात जिसे कहते हैं, ठीक है। और नंबर 3 है कुर्बानी। ये हुक्म सिर्फ किसके लिए, कारीन व मुतमत्ते के लिए, यानी हज की 3 किस्में वो आगे आ रही है तो ये उनके लिए क्या करना है, कुर्बानी करना है, ठीक है ना। 3 किस्में, इसमें से 2 किस्में वालों के लिए कुर्बानी करना वाजिब है, 1 किस्म वाले के लिए कुर्बानी वाजिब नहीं, मुस्तहब है, वो आगे आ रहा है। नंबर 4 है हलक या कसर कराना। हलक यानी बाल को पूरा सर से निकालना, और कसर कराना यानी उसे छोटे छोटे करना, ट्रिम करना। और औरत है तो उसके लिए भी उसकी थोड़े से बाल नीचे से कसर किए जाएंगे, काटे जाएंगे, ठीक है। नंबर 5 है सफा मरवा की सई करना। सफा मरवा 2 पहाड़ है, उनके दरमियान में 7 चक्कर लगाना, इसे सई करना कहते हैं। नंबर 8 है तवाफ विदा, जिसे अलविदा जैसे होता है ना, तो तवाफ विदा ये उन लोगों के लिए है जो मक्का में मुस्तकिल मुकीम ना हो, यानी वो मक्का में रहने वाले ना हो, ठीक है ना, उनके लिए क्या है, ये तवाफ करना वाजिब है। अच्छा आगे देखिए मुमानियत एहराम। एहराम की हालत में क्या मुमानियत होती है उसके बारे में देखिए कि मर्द के लिए सिला हुआ कपड़ा जो एहराम है वो पहनना मना है, औरत चाहे कैसा भी पहन सकती है, ठीक है ना, कैसा भी है ना जो शरई लिबास के हिसाब से, शरई तौर के हिसाब से, ठीक है। नंबर 2 है मर्द का दिन या रात में अपना सर या चेहरा ढांपना। मर्द का सर और चेहरा दोनों दिन और रात में, जब एहराम बांधा है तो एहराम खोलने तक नहीं ढाकेगा। औरत क्या कर सकती है, इसको ढांप सकती है। कैसे, अगर कोई गैर महरम आ रहा है तो अपना चेहरा छुपाएंगे। पहली बात तो सर ढकी रहती है, अब रहा सवाल चेहरा खुला रहना, तो चेहरा भी खुला है, और अगर घर में है तो फिर कोई आ जाते हैं तो सर और चेहरा दोनों छुपा सकती है। हाँ ये है कि चेहरे पर कपड़ा नहीं लगना चाहिए, उसको बचाना है। तो कुछ ऐसी इस तरीके की टोपियां आती हैं जो यहाँ से
नकाब जो हिजाब होता है वो डाल सकते हैं, तो वो चेहरे को नहीं लगता है। ठीक है। नंबर 3 है कि बदन के किसी हिस्से के बाल मूंडना, काटना या तोड़ना, मूंडना, काटना या तोड़ना ये मना है एहराम की हालत में। ठीक है। नंबर 4 क्या है, हाथ पांव के नाखून काटना, ये भी मना है। नंबर 5 बदन या कपड़े पर खुशबू लगाना, ये भी मना है। नंबर 6 मर्द का ऐसा जूता पहनना जिससे उसके पैर की उभरी हुई हड्डी, ये जिस तरह हमारा पैर है तो यहाँ पर एक उभरी हुई हड्डी होती है, ये उभरी हुई हड्डी का छुपाना मना है मर्द के लिए, औरत कैसा भी पहन सकती है। ठीक है ना, कैसा भी पहन सकती है, मतलब अगर उसकी हड्डी छुप भी रही है तो भी उसके लिए दुरुस्त है। आगे देखिए हज की 3 किस्में। नंबर 1 है हज इनफिराद, हज इफराद है, हज इफराद है, दूसरा है हज क़िरान और तीसरा है हज तमत्तु। हज इफराद किसे कहते हैं कि देखिए मीकात से, जब मीकात एक जगह होती है, मीकात से गुजर रहे हैं, गुजरते वक्त सिर्फ हज का एहराम बांधा जाए। ठीक है ना, खाली हज की नीयत से ही एहराम बांधा जाए, और 10 जिलहिज्जा को रमी जमरात यानी शैतान को पत्थर मारने के बाद एहराम खोल दिया जाए। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये हज इफराद है, और हज इफराद करने वाले को क्या कहते हैं, मुफरिद कहते हैं। ठीक हो गई। नंबर 2 है हज क़िरान। अच्छा, ये हज इफराद में देखे कि कुर्बानी इस पर वाजिब नहीं है। ठीक है ना, कुर्बानी हज इफराद करने पर वाले पर वाजिब नहीं है, वो अगर कुर्बानी नहीं भी करता है तो भी चलेगा। ठीक है। दूसरी चीज है हज क़िरान। हज क़िरान क्या है कि जब मीकात से हज और उम्रा, जब मीकात पर पहुंच गए तो हज और उम्रा दोनों की नियत करके वो एहराम बांध लिया। ठीक है ना, अब जब दोनों की नियत से एहराम बांधा है शख्स, तो पहले उम्रा किया। ठीक है ना, अब वो उम्रा करने के सारे जो अरकान है, उम्रा किया, सही किया, बाल कटाया, वो सारे करने के बाद में उसने क्या किया है, बाल नहीं कटाना है। ठीक है ना, हलक नहीं करना है, बाल नहीं कटाना है। बाकी उम्रा करने के बाद वो एहराम खोल देता है। ठीक है ना, अब एहराम खोल के फिर उसको जब 8 जिलहिज्जा हो जाती है फिर एहराम बांध लेता है। हज के दिनों में एहराम बांध के फिर पूरा हज के जो सारे अरकान है, अफआल है, वो पूरा मुकम्मल कर देता है, तो उसका हज भी हो गया, उम्रा भी हो गया। अब ऐसे शख्स पर क्या होता है कि उसे कुर्बानी करना वाजिब हो जाती है। तो ये कौन सा हज हुआ, ये हज क़िरान हुआ। हज क़िरान करने वाले को वो कारीन कहते हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से तीसरा हज है हज तमत्तु। हज तमत्तु भी कुछ इसी तरीके से है। देखिए कि मीकात से उम्रा का एहराम बांधा। ठीक है ना, मीकात से अब आ गए, उम्रा का एहराम बांधा है। ठीक है, उम्रा का एहराम यानी सिर्फ उम्रा की नियत की थी वहां पे। हज क़िरान में दोनों की नियत की, हज और उम्रा की नियत, यहाँ पर सिर्फ उम्रा की नियत की। उम्रा की नियत करने के बाद क्या हो गया, अभी उम्रा के सारे अफाल अदा किए। ठीक है ना, और एहराम खोल दिया। फिर 8 जिलहिज्जा को फिर हज का एहराम बांध लिया है, और 10 जिलहिज्जा को सारा जो उसके अरकान होते हैं, जैसे रमी जमरात करना है, फिर कुर्बानी करना है, बाल कटाना है, ये सारा करने के बाद एहराम खोल दिया है। ठीक है ना, तो ऐसा हज करने वाले को हज तमत्तु कहते हैं। ठीक है ना, और ऐसे हज को हज तमत्तु कहते हैं, और ऐसा करने वाले को मुतमत्तो कहते हैं। और उसमें भी इस हज में भी कुर्बानी करना वाजिब है। हज क़िरान में भी वाजिब है, हज तमत्तु में भी वाजिब है, हज इफराद में कुर्बानी वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। फायदे के तौर पे एक बात यहाँ समात फरमाए कि देखिए जो लोग मक्का मुकर्रमा में रहते हैं, यानी जो सऊदी के ही है, शहरी है, या कोई ऐसे लोग हैं जो वहीं पे रह रहे हैं, ठीक है ना, और वो हज कर रहे हैं, या जो लोग उम्रा के लिए और सर उम्रा करके सर मुंडा कर या बाल कटवा कर हलाल हो जाते हैं ना, यानी ये इसे हलाल कहते हैं। ठीक है ना, हलाल हो जाते हैं और फिर बिला एहराम यानी बगैर एहराम के मक्का में ही रहते हैं। ठीक है ना, ये लोग फिर 8 जिलहिज्जा को फिर एहराम बांधते हैं। ठीक है, और पूरे जो इसके अरकान है, यानी रमी जमरात करना है, कुर्बानी करना है, ठीक है, और फिर बाल कटाना है, ये सब करते हैं। अगर किसी ने ये ऐसा करते हैं तो ये भी इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है ना, ये सिर्फ क्या होगा, ये सिर्फ हज का एहराम होगा, क्योंकि पहले वाले में क्या था, हज क़िरान में दोनों का एहराम था, उम्रा का भी था हज और हज का भी था। अब ये जो एहराम बांधेंगे ये लोग, ये सिर्फ हज का एहराम होगा। ठीक है ना, अगर किसी ने शवाल या जुल्हिज्जा में कोई उम्रा किया हो, शवाल जो जुल्हिज्जा जो हज का महीना होता है उसका नाम है जुल्हिज्जा, उससे पहले महीने में
کسی نے عمرہ کیا وہیں کا رہنے والا، جیسے ہم یہاں رہ رہے ہیں تو ہم اگر وہاں کے ویسے رہنے والے یا وہاں کے جو شہری ہے تو وہ لوگ اگر کرتے ہیں تو ان کے لیے کرنا یہ درست ہے، اور ایسا کرنے پر پھر کیا یہ صرف حج کا احرام ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ عمرہ کر لیا اور اس کے بعد اپنے گھر نہیں گیا تو اس کا وہ عمرہ اور یہ حج مل کر حج تمتع ہو جائے گا، اگرچہ یہ شخص اس وقت صرف حج کی نیت کرے. سمجھے کہ اگر وہ شخص صرف اس وقت حج کی نیت کر رہا ہے تو اس کو دونوں کا ثواب ملے گا. اور حج میں جیسے میں نے بتایا 3 قسمیں، افراد، قران، تمتع. تو یہ وہاں جو رہ رہے لیکن اپنے گھر نہیں گئے، اب گھر نہیں گئے تو اس میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں، تو وہ ساری چیزیں نہیں کیے ہیں تو یہ شخص کو بھی حج تمتع کا ثواب ملے گا. دیکھیں ہر چیز میں کسی نہ کسی طریقے سے کچھ درجات ہوتے ہیں. جس طریقے سے ایک بچہ، کئی بچے ایگزامز لکھتے ہیں تو اس میں کوئی بچہ پہلا، کوئی دوسرا، کوئی تیسرا، اس طریقے سے آتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے ہم اعمال جو کرتے ہیں اس میں بھی ثواب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی اعمال کر رہا ہے اخلاص کی بنیاد پر کہ خالص اللہ کے لیے کر رہا ہے، کوئی کر رہا ہے اس میں تھوڑا اللہ کے لیے اور تھوڑا اپنے کو آپ کو بھی خوش کر رہا ہے، پھر کوئی لوگوں کو خوش، تو یہ اعمال میں تھوڑے درجات ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے حج کی جیسے کہ 3 قسمیں ہیں تو تینوں قسموں میں الگ الگ ثواب ملے گا. جس طریقے سے پلین میں جاتے ہیں تو کوئی اکنامی کلاس، کوئی بزنس کلاس، کوئی فلاں کلاس، ایسا ہوتا ہے نا، ٹکٹ میں پرائس کا بھی فرق پڑ جاتا ہے، تو اسی طریقے سے ثواب میں بھی فرق پڑتا ہے. آج کی 5ویں چیز دیکھیں کہ نظر بد سے بچنے کی دعا. نظر بد یعنی بری نظر سے بچنے کی دعا کیا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسی اچھی چیز، کوئی چیز کو دیکھ لیا، ٹھیک ہے نا، دیکھنے کے بعد اس کو کیا کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جب یہ پڑھ لیں گا تو اسے بری نظر نہیں لگے گی. اگر کوئی شخص ہمیں دیکھ کر کوئی تعریف کرتا ہے یا ہماری کوئی ایسی چیز کو دیکھ کر کہتا ہے تو فلاں جو بھی شخص ہے اس کو فوراً کہنا بھائی ماشاء اللہ بولو، ماشاء اللہ بولو. نہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک حدیث پاک کا مفہوم میں یہاں پر بتا دوں کہ دیکھیں نظر جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اچھی نظر، ایک ہوتی ہے بری نظر. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے العین حق، العین حق، کہ آنکھ جو ہے یعنی نظر جو ہے یہ حق ہے، کہ انسان کو اگر اچھی نظر لگی ہے تو اسے بہت آگے تک بڑھا دیں گے، اس کی ترقی ہو جائیں گے، اور اگر بری نظر لگی ہے تو اسے قبر تک پہنچا دیں گے. کہ وہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا یہ مفہوم ہے کہ انسان کو بری نظر جو ہے قبر تک پہنچاتی ہے اور اونٹ کو ہنڈی تک پہنچاتی ہے. ہنڈی تک پہنچانے کا مطلب کیا ہے، اونٹ اچھا خاصا اونٹ بھی بیمار ہو جاتا ہے اور مسلمان کیا کرتا ہے کہ اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر لیں گا. اب ذبح ہو گیا تو اس کا گوشت کیا آ جائے گا، ہنڈی میں آ جائے گا. تو یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.